First of all, I will congratulate the entire management committee and the faculty of Mata Sundari College who have organized this seminar and a very relevant topic, that is the need of the hour. And I'm thankful to Sardar Harinderpal Singh ji जिन्हों ने मैंने मौका दिता कि मैं अपने व्यूज़ रख सका और बेसिकली मैं शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब कोर्स की स्टूडेंट भी हाँ तो अज उन्होंने देखना है कि उन्होंने स्टूडेंट ने कुछ सीखा भी है क्लास के नहीं आई एम नॉट अ स्कॉलर मैं आई एम येट अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट ही हाँ और स्टूडेंट के तौर पर ही मैं बोलांगी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਟਿਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਏਜ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੂਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਚਡ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਏਜ ਨਿਊ ਏਜ ਮੀਨਸ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਐਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਨਿਊ ਏਜ ਨੂੰ ਨਿਊ ਏਜ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਿਊ ਏਜ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਏਜ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਿਊ ਏਜ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਿਊ ਏਜ ਗੁਰੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੁਰੂਜ਼ ਨਿਊ ਏਜ ਦੇ न्यू एज में वर्ड इस करके बोल रहे हैं कि जिन्नी यंगर जनरेशन है वो बहुत जल्दी रिलेट करेगी दूसरी डेफिनेशन है डंकन ग्रीनलेस की उन्होंने क्या कि गुरु ग्रंथ साहब इज द क्रीम ऑफ इंडियन आइडियोलॉजी होल वर्ल्ड will adopt a single religion that will not contain false rituals and ceremonies but values service and love that religion would be of Guru Granth Sahib ਉਹ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ जापान भी असर होएगा और इंडिया के अगर कुछ हो जाता तो जापान यूएस चाइना पूरे वर्ल्ड ओवर इंपैक्ट होता होएगा नाल ही असी लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज बन गई है असी बहुत नज़दीक आ गए और एक तरह के असी ग्लोबल सिटीजनस भी बन चुके हैं ग्लोबल सिटीजनस इज कि साढ़े चो बहुत सारे लोग बाहर दी यूनिवर्सिटीज़ पढ़न चले जाते हैं सैकेंडली असी उत्थे जॉब्स करने और तीसरा वो आ जाता है जोड़े लोग अपने बिजनेस वास्ते ट्रैवल करते हैं जानते हैं और आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन का दूसरा पक्ष है कि दो कल्चर्स या वक्त कल्चर्स की जी इंटरैक्शन है वो डेली बेसिस के उत्ते हो चुकी है तो अज सानू जरूरत पैंदी है कि असी आराम दे नाल उन्हां दे मुल्क च रह सकीए वो साडे मुल्क च रहन और हो रहा है डेली बेसिस के उपर हो रहा है तो वी नीड ग्लोबल वैल्यूज सानू यूनीवर्सल वैल्यूज चाहिए एक कम्यूनिटी की वैल्यू नहीं चाहिए तो वो वास्ते सानू गुरु ग्रंथ साहब दे विचों जो वैल्यू सिस्टम मिलता है वो सानू किसी होर धर्म ग्रंथ दे विच नहीं मिल रहा ग्लोबलाइजेशन की गल जपजी साहब दे विच गुरु साहब ने कर दी आई पंथी सगल जमाती जिन्हें पूरी ह्यूमैनिटी नूं नाल लैके चलना है पूरी ह्यूमैनिटी की जिथे गल है ह्यूमन वैल्यूज की गल होगी क्योंकि अज असी कन्फ्यूज है ना असी यह नहीं कहते कि मैं धर्मी हाँ मैं रिलीजन असी कहने असी स्पिरिचुअलिटी चा तो स्पिरिचुअलिटी भी से ह्यूमैनिटी तो ह्यूमनिज्म ह्यूमन वैल्यूज की गल जी उस गुरु ग्रंथ साहब विच है थोड़ा जिहा मैं दें कि जिस टाइम गुरु नानक देव सीगे अज असी अपने धर्म ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते सानू लगता है सोशल सैटअप वो नहीं है जो उस टाइम पढ़दा सिस्टम सी अज पिंडां दे विच हले भी मौजूद है लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर उन्हां दे रिलीजन का पार्ट नहीं है
चाइल्ड मैरिज किते किते है, बाल विवाह नहीं है, लेकिन सानू एक सौगात के रूप में चाइल्ड रेप मिल रहे हैं आजकल, 5 साल 8 साल और गैंग रेप्स हो रहे हैं। जिस टाइम ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤੂਤ ਕਸੂਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ, लेकिन एट द एज ऑफ 21-22 सानू अपना कंपैनियन चुनने का हक जोड़ा नहीं है। एक वोट गलत पै जाए तो एक गलत पॉलिटिशियन तुहाडे सिर के उत्ते आके बैठ जाएगा, जिहदे नाल कि पूरी कम्यूनिटी बेस्ड है, पूरी मतलब ह्यूमैनिटी के उत्ते असर हो जाएगा। लेकिन एक बंदा तुहाडी लाइफ में गलत होंदा तो 2 परिवार इंपैक्ट होंदे, लेकिन असीं 2 परिवारां नूं छड्ड के देश तो कहंदे ने वोट पाओ जो मर्जी करदे जाओ, कोई फर्क नहीं सानू पैंदा। उस तो बाद जो साडा समाज है, गेज आ गए, लेसबीयंस आ गए, लिव इन रिलेशनशिप आ गए, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अज सानू लगता कि डर है कि असी मैरिज नहीं करनी, असी चल नहीं सकते। जो बेसिक क्वालिटीज साड़ी जी मोरालिटी है, कन्फ्यूज्ड मोरालिटी हो गई अज, परवर्टेड ग्रोथ। साइकोलॉजिस्ट अगर पूछो कि गेज और लेसबीयंस को असी किस तरह देखी तो कहते जिवें ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट सीधी चलती है, उन्होंने परवर्टेड डेवलपमेंट तो बैकवर्ड आ गई, एनिमल इंस्टिंक्ट्स जिहड़े उन्होंने ज़्यादा जाग गए। पोलिटिकल सिस्टम साडा की है, 2G स्कैम, 3G स्कैम और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले पॉलिटिशियंस है, कुछ एक दे सब दे नहीं, लेकिन वो सानू गवर्न कर रहे हैं। उस तो बाद साडे पॉलिटिशियंस इन्ने अच्छे ने कि वो विधान सभा दे विच बैठ के ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं, तो वो सोसाइटी दी की करनगे, DSP दे जिहड़े MLAs MPs उन्होंने उत्ते गैंग रेप दे चार्जेस लगे होन। इस तरह का साडा सैटअप है। उस टाइम गुरु साहब ने किसी एक इंसान की गल नहीं की सी, उन्होंने मानसिकता की गल की सी। तो मानसिकता अज भी साड़ी पहले नालों ज़्यादा डिटीरियोरेट ही होएगी, ऊपर तो मैनू नहीं लगता कि गई होएगी, एक्सैप्ट अ फ्यू असीं उन्होंने उंगलियां ते गिन सकते हैं जिहड़े असीं कहिए कि वो अच्छे चल रहे होंगे। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आदमी भी एक एनीमल ही है, बट ही इज़ अ सोशल एनीमल। उन्हें समाज दे विच विचरना है, वो आइसोलेशन नहीं जी सकता, तो इस करके उन्होंने इंडिविजुअल किस तरह होएगा, समाज किस तरह, हम समाज कौन बनाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज सोसाइटी। तो समाज बेस करता है एक इंडिविजुअल के उपर, एक इंडिविजुअल जड़ा टिकया होया है वो कदरों और कीमतों के उत्ते टिकया होया। अगर उसकी वैल्यू सिस्टम साउंड है तो ऑबवियसली इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज मैं फर्क नहीं कर रही, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के मैनू लगता है कि सेम है। जो तुहाडी इंडिविजुअल वैल्यू होएगी वही तुसी समाज नूं दोगे, वही फैमिली नूं भी तुसी दोगे। तुसी बाहर अगर दिखावा भी कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम तुहाडा दिखावा नहीं चलेगा। सब तो पहले जो वैल्यू सानू मतलब समझण की जरूरत पैंदी ना कि वैल्यू यूनीवर्सल किस तरह, तो असी रोज जपजी साहब दे विच पढ़ रहे हो ना, पवन पानी अग्नि राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। धर्मसाल मतलब धर्म कमान की जगह है, राइटियसनेस नूं असीं फॉलो करना है। और ये धरती की गल उन्होंने पूरे यूनीवर्स की पूरे जगत की गल कर दी, कम्यूनिटी की गल नहीं की। दूजी सानू पक्ष जिहड़ा इहदे विच मिलदा है वो सानू मिलता है घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोगा। कीर्तन के 2 एस्पैक्ट्स, हुण घर दे विच भी असीं राइटियसनेस फॉलो करनी है, सिर्फ समाज विच नहीं फॉलो करनी। कीर्तन के 2 एस्पैक्ट हैं, एक है परमात्मा का जस गाना, उन्होंने याद करना, उसकी उस्तत करना। दूसरा एस्पैक्ट है शब्द का, गुरबाणी का विचार, डिठे मुकत ना होवे जिस शब्द ना करे विचार। जदों असीं वो विचार करांगे तद ही जाके सानू वैल्यूज की समझ आएगी कि गुरबाणी सानू मैसेज की दे रही है और असीं किस तरह का समाज, किस तरह ग्लोबल सोसाइटी च असीं मूव करना। तीसरी गल इंडिविजुअल की आ गई, ये शरीर सब धर्म है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू प्रैक्टिस राइटियसनेस। 3 पक्ष सानू किते भी नहीं मिलणगे कि पूरी धरती यूनीवर्स की गल हो गई, फिर घर की भी गल हो गई और उस तो बाद शरीर एक इंडिविजुअल की भी गल हो गई। बिफोर बिगनिंग दी वैल्यूज़ जो सानू सिखिज़म में मिल रही ने, उस तो पहले ऑन वुमन जो गुरबाणी ने सानू दसिया, उन्होंने सुचज्जी कुचज्जी नार की गल की है। और जिस तरह सर ने कहा कि जाग सलोंदड़िए, कि उन्होंने सानू साढ़े हकों वास्ते जगाया, लेकिन अज जाग सलोंदड़िए उस तो भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया ग्लोबल एरा दे विच, क्योंकि असी हकों वास्ते तो जाग गए हैं लेकिन सानू अपना रोल नहीं पता कि साडा रोल की है, साडी पावर की है। असी अपनी वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ नू सानू लगता है कमज़ोरी हो गई है साडी। अगर हंबल हाँ असी
और साडे विच संयम है, सील है, दया है, धर्म है, ये सारी क्वालिटीज़ उन्होंने एक वुमन दे विच दसियां। अगर अज असी एक कोई कहे और 4 जवाब नहीं देंगे, सानू लगता साडे ते मुक्ति पॉसिबल नहीं है, असीं ते दब गए। असी अपनी क्वालिटीज़ नू अपनी वीकनेस समझ के छड़ दिता है और असी रोल रिवर्सल पहुँच गए हैं। बराबरी साड़ी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। जिस तरह सर ने हुणे क्या कि 22 मंजियां सन ते 3 उन्होंने जोड़े मुखी सन वो औरतां बनाईयां, धर्म दे विच बराबरी दी। उसी तरह 52 पीढ़े बनाए गए सन, जोड़ा लोकैलिटीज़ दे विच उन्होंने धर्म प्रचार का काम भी, संगत अगर वड्डी है तो छोटी संगत का भी नाल ही उन्होंने ध्यान रखा, उत्थे भी औरतां नूं उन्होंने मुखी बनाया। तो उत्थे की हुंदा सी, पाठ बाणी का पाठ पठन होंदा सी, शब्द विचार होंदा सी। तो जिस इंसान नूं मुखी बनाया है ਉਹਨੂੰ ਕੀ सोच के मुखी बनाया होएगा, वो किस तरह का कैरेक्टर होएगा। और अज भी असी कहने हाँ कि साड़ी पहली गुरु साड़ी मदर ही होंदी है, कोई होर बंदा, सोसाइटी, हर चीज़ फैमिली की बाद चो आएगी। पहले साड़ी माँ ने ही सानू वैल्यूज़ दित्तियां। गुरबाणी दे विच गुरु साहब ने एक बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज़ की है, तेरी माँ कुछ अजी आई, कि उन्होंने पूरा ब्लेम औरत के उत्ते पाया कि अगर किसी को राइट वैल्यूज़, राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन नहीं मिली, संस्कार नहीं मिलते, तो मदर इज़ टू बी हैल्ड रिस्पॉन्सिबल। उस तो बाद असी वैल्यू की अगर गल करिए तो पहली वैल्यू है विचार, कि शब्द का विचार असी करना है, विजडम, एनलाइटनमेंट, कि साडा जो असली परपस है वो साडा हैगा कि असी मुक्ति, लिबरेशन वास्ते आए हुए हैं, असी इत्थे फसना नहीं है। पहली जिस टाइम असी फॉलो करना है, लेकिन गुरु साहब ने शब्द विचार की गल करके उन्होंने सानू नाल भी कह दिता है, बाणी विरलो विचार सी। साढ़े चो बहुत लिमिटेड होंगे जिन्होंने बाणी नू विचार करना है। पहली वैल्यू जदों असी सुनिया जपजी साहब में आंदा ना, सुनो मनो उहदे रस्ते दे चलो, राइटियसनैस नू जदों असी समझ के चलने, पहली वैल्यू सब तो पहले सानू जपजी साहब अज मिल जाती। गुरु साहब ने पकड़ लिया कि सचियारा होइए, ऑनैस्टी। और ऑनैस्टी नू मैं इंटैग्रिटी के नाल ही दो वैल्यूज़ नू इकट्ठा असी देखांगे कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक वैल्यू जदों साडे अंदर आंदी है गुरमत दी, तो वो ऑपोजिट डिस वैल्यू जिन्होंने असी कहने वो एक साडे अंदरों निकल जाती है। एक वैल्यू के विचों फ्लो होकर दूसरी वैल्यू साडे नाल आनी स्टार्ट हो जाती है और सानू पता भी नहीं चलता कि किस तरह ज्ञान खंड, कर्म खंड, चरम खंड असी स्टैप बाय स्टैप चलते चले जाने। ऑनैस्टी दे विच सब ने कहा कि ऑनैस्ट लिविंग नू उन्होंने कहा ना कि सच्चे हो रहे सबको ऊपर सच आचार, ऑनैस्ट लिविंग। लेकिन ऑनैस्ट लिविंग तो नाल नाल अगर असी उन्होंने देखिए कि साड़ी ऑनैस्ट डीलिंग भी अपनी फैमिली दे विच भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है साढ़े बिहेवियर दे विच। आज हसबैंड वाइफ दे विच भी झूठ है, आज पेरेंट चाइल्ड दे विच भी झूठ है, आज ब्रदर सिस्टर झूठ है, फ्रेंड्स झूठ है, और प्रोफैशनल एथिक्स जिन्होंने असी कहिए वो भी उन्होंने विच भी सच्चाई सानू नहीं मिल रही है। तो ऑनैस्टी अगर इनू असी हुण ग्लोबल और प्रोफैशनल लैवल ते लैने आ, असी मोस्टली की करना तरक्की करने वास्ते वी चेंज आर जॉब्स। BPO और मल्टीनैशनल कंपनीज कल्चर जोड़ा बहुत पॉपुलर है। तो हुण असी जो अपने रिज्यूमे लिख के भेजने 6 महीने इत्थे 6 महीने इत्थे, भी अच्छी सैलरी सानू मिल रही, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन जो प्रोफैशनल एथिक्स हैं और जो लोग हुण इंटरव्यूज़ लाते हैं वो कहते हैं दैट मीनस तुहाडी कोई इंटैग्रिटी नहीं है, तुहाडे उत्ते कोई कंपनी रिलाई नहीं कर सकती कि अगर तुसी हर 6 महीने बाद बदलते होगे, जो कंपनी तुहाडे उत्ते टाइम लगाएगी, इन्वेस्ट करती है, तो मतलब सच्चाई तुहाडे अंदर नहीं है, जिहड़ी कि साडे वास्ते हुण डिसवैल्यू हो गई है। जो असी पदार्थवाद, जो असी राइज करना जिन्हों मन रहे हैं, वैल्यू की गल अज साडे प्रोफैशन और कंपनीज भी करन लग गई हैं। ऑनैस्टी जो असी देखा, मैं हुणे कहा कि साडे रिलेशनशिप्स भी सच्चाई नहीं है, पारदर्शिता जिहड़ी है वो नहीं है। ताई सानू टीवी दे विच प्रोग्राम देखने को मिलता है सच का सामना। हसबैंड ने कित्थे अफेयर किया, वाइफ ने कित्थे अफेयर किया, किहड़ी तिजोरी चोरी, किहड़े असी चोरी किते, किहड़े रिलेशनस बनाए, लेकिन साढ़े चो एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिन्हें ऑब्जेक्ट किया होए। असी कुछ लोग टीवी बंद कर देने, बट असी वी स्टिल वी वॉच दैट सीरियल, असी उन्होंने बंद नहीं किया। जो आर्ट है वो समाज का ही आईना है, मतलब समाज चाहे हो रहा है कि अज बंद कमरे की चीज़ों को असी टीवी के उत्ते देख के वी आर वेरी हैप्पी कि असी ग्लोबल एरा मूव कर रहे हैं। सानू नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ऑनैस्टी और इंटैग्रिटी की वैल्यू के विचों ही साढ़े अंदर जिहड़ी है ना टॉलरेंस, जदों असी सहनशील होवांगे लोगों के प्रति। हुण असी कहने कि असी टॉलरेंट हाँ लोगों की मिसटेक्स नूं, वी आर टॉलरेंट, असी उन्हां दी आइडेंटिटी नूं असैप्ट कर रहे हैं, रिस्पैक्ट कर रहे हैं, प्रोटैक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी लार्जर इशू।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਰਸਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਹੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਐਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ। ਟੋਲਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਜ ਔਰ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ 2 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, 2 ਵਰਚੂਜ਼, 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੇਜ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 60 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸੋ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। और उत्थे सानू गुरु साहब करज के बारे च ना सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेर। लेकिन असी दूजी करज का एस्पैक्ट है कि जो साड़ी लाइफ दे विच चैलेंजेस आ जाते हैं, वो चैलेंज परसनल लैवल ते तो रोज़ ही आ रहा है, प्रोफैशन आएगा, चॉइसिस दे विच आएगा, समाज विच आएगा। असी वो नहीं टॉलरेट, वो फेस ही नहीं कर पाते। असी पीयर प्रैशर इन्ने घिड़ जाने कि सानू लगता है कि असी अगर बाहर जा रहे हैं, टर्बन बनी हुई है, तो लोग सानू कहेंगे असी अपनी आइडेंटिटी तो फिर जाना। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड। और बहुत सारे सिख, इट इज़ नॉट कि भाई मैं किसी कम्यूनिटी को कह रही हूँ, वो कैप्स पान लग पे, उन्होंने टर्बन, ईवन इन दिल्ली उन्होंने टर्बन छड़ दी। वो कहते लोग साड़ा मजाक उड़ाते, सानू लगता है कि असी इन्हों तो अलग हाँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिवें इस्कॉन और ब्रह्मा कुमारीज, दैन चिन्मया मिशन, जिन्हों के अगर तुम जाओ तो तुहानू यंगस्टर्स उत्थे बहुत मिलणगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। लेकिन उन्होंने समाज छड़िया होया, वर्ल्डली लाइफ छड़ के वो उन्होंने मतलब मैसेज का भी प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाउ टू लिव लाइफ। और हैरानी की गल है कि जिन्होंने गृहस्थी छड़ दी है, वो गृहस्थियों को समझा रहे हैं कि उन्होंने गृहस्थ किवें जीना चाहिए। वी मस्ट हैव करेज कि यह चैलेंजेस रोज़ आएंगे, और चैलेंजेस असी खुद ही बनाए हुए हैं, बाहरों नहीं आते। साड़ी मानसिकता ने चैलेंजेस बनाए हुए हैं। ह्यूमिलिटी साढ़े अंदर आएगी ना, गुरमत हृदय गरीबी आवे। एंटी ईगो मतलब जो साढ़े अंदर है गरीबी वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो साड़ी ईगो दी है बिल्कुल कंट्रास्ट है। ह्यूमिलिटी आएगी तो ईगो साढ़े विचों जाएगी। और ईगो नू एक मैंटल इलनेस क्या गुरु साहब ने, हौमे धीरत रोग है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोग का तो इलाज नाल ही उन्होंने देखे ना, गुरमुख हौमे शब्द चलाए कि गुरबाणी के विचार उन्होंने पढ़न नाल समझन नाल हौमे साढ़े। और जपजी साहब दे विच ही सानू मिल जाता, नानक हुक्मे जे बूझे तो हौमे कहे ना कोई। हौमे जिस टाइम अगर असी इंडिविजुअल लैवल के उत्ते लईए, हुण असी जो ग्लोबलाइजेशन दे विच वैल्यूज़ नू देखना तो असी घर भी देखांगे और अपने प्रोफैशन भी देखांगे। तो जिस टाइम ईगो आउंदी है, वो इंसान अच्छा लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वह टीम वर्क कभी भी नहीं होएगा। वो किसी दे नाल मिल के काम नहीं करेगा। हौमे ज्ञान की भी हो सकती है, हौमे ब्यूटी की हो सकती है, हौमे अमीरी की हो सकती है, हर चीज़ की होंगी। और कई तो इन्नियां सटल और हिडन होंदियां कि सानू भी नहीं पता होंदा कि वो साढ़े अंदर है। तो हुण जिन्ने प्रोफैशन अगर असी इंटरव्यूज़ देने उन्होंने पूरी पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर दी थी। हुण 1-on-1 इंटरव्यू छड़ के वो कहते हैं एक बंदा गल करे, दूजे नूं ऑब्जर्व करो, और वो क्वेश्चन इस तरह के पुटअप करते हैं जिहदे विचों साडी इनर परसनैलिटी जिहड़ी है वो बाहर आ जाती कि एक्चुअल इन्हां दी तुसीं जिन्ना भी झूठ बोलोगे 15 मिनट अद्धा घंटे बाद तुहाडे निकल आएगा मूँह दे विचों कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं, जो भी साडा वैल्यू सिस्टम है। लव एंड कंपैशन, प्यार सब दे नाल, पूरी ह्यूमैनिटी दे नाल, दया, दौल धर्म दया का पूत। लव और कंपैशन साढ़े वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि असी जस्टिस किसी दे नाल तां ही कर सकते हैं जो साढ़े मन च दया आ जाएगी
कि भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਐਮਿਟੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਔਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਰਾਠੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ। फैमिली भी बैठ गई, रिश्तेदार भी बैठ गए, सोसाइटी भी बैठ गई। उस लड़की की रुचिका की सिर्फ एक फ्रेंड सी, चाइल्डहुड फ्रेंड, जी टिल दी एंड इस गल ते कायम रही कि इस लड़की के नाल जाती हुई है और मैं देखिया। वो जेल गए नहीं गए दैट इज़ अ सैपरेट इशू, क्योंकि वो साडे जुडिशरी का मसला है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਜਮ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੀਡ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ बैलेंस सानू उन्होंने गुरु साहब ने दिता है। और इन्हां सब तो उपर की जिहड़ी वैल्यू है नाम जपना, वो परमात्मा दे नाल जुड़ना है। हुण असीं वैसटर्न कॉन्सैप्ट देखने ना, वो लोग बहुत सारा सैक्शन ऐसा जिहड़ा साडा इंडिया विच भी कहंदा कि असीं परमात्मा नूं नहीं मनदे, लेकिन असीं अपना जीवन जिहड़ा सच्चाई नाल, सुच्चेपन नाल जी रहे हां, एथिकल जी रहे हां। तो उस हिसाब नाल वैसटर्न कंट्रीज बहुत एथिकल ने, टाइम के उत्ते अपना बिल हर चीज़ पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस वो पूरियां फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी हाईएस्ट डिप्रैशन के केसिस, लोनलीनैस के केसिस, सुसाइड के केसिस, और जो उन्होंने कोल पैसा आता वो अमीर हो जाते हैं। सैलीब्रिटीज मोस्टली दे आर ड्रग एडिक्ट्स। अल्टीमेटली दे रिजल्ट की होंगे उन्होंने, या तो असाइलम्स बैठे होंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बैठे होंगे, या फिर वो सुसाइड कर रहे होंगे। बहुत सारा लार्ज सैक्शन वैसटर्न कंट्रीज के जोड़े यंग, उन्होंने असी इस्कॉन दे, तुसी अगर वृंदावन जाओगे तो तुहानू मिलणगे फॉरनर सारे, वो हरे कृष्णा मंत्र चैंट कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज तुसी नैट के उत्ते sikh.net अगर देखोगे तो तुहानू बहुत सारे फॉरनर्स ऐसे मिलणगे जिहड़े कन्वर्ट होकर सिखिज्म च आए। उन्होंने मैं पूछा कि वाई डिड यू कन्वर्ट, तुहानू बाइबल दे विच सारा एथिकल दिसे, एथिकल मिलता है, सानू उहदे चों पीस वो रस नहीं मिलता जो सानू गुरबाणी दे विचों मिल रहा है। इस चीज़ की समझ सानू, असी जो इत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि परमात्मा की होंद और यह चीज़ जरूरी नहीं, बाणी पढ़नी जरूरी नहीं, बाणी पढ़नी भी जरूरी है, परमात्मा का नाम भी जरूरी है, तद ही असी इस रस्ते के उत्ते प्रॉपर तरीके दे नाल चल सकते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, रीसेंट साढ़े सामने इन्ने उदाहरण आए ने, स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के CEO, रीसेंट उन्होंने डेथ हुई, 60s और 70s के विचों इंडिया होके गए ने कि मैं अपने वास्ते गुरु लभन आया, स्पिरिचुअलिटी वास्ते मैं आया। बीटल्स एक म्यूजिक ग्रुप है, उन्होंने सारे बंदे इत्थे रह के गए ने 60s और 70s के विच, और हुण भी बहुत सारा है असी देखिया उहदे च कन्वर्ट होए ने, बुद्धिज्म कन्वर्ट होए ने, बहुत सारे आर्टिस्ट ने जिहड़े बुद्धिज्म अज जिहड़ा मल्टीकल्चरल असी देख रहे हैं वो समाज च नहीं, वो घर च भी है। मैं एक फैमिली देखी है जिथे दे आर सिख फैमिली, ਉਹਦੇ फादर कीर्तन सुन रहे होंगे, डॉटर उन्होंने बुद्धिस्ट चैंट्स सुन रही होंगी है, और बेटा उन्होंने ताओ फिलोसफी पढ़ रहे होंगे। वो कहते हैं असी गुरबाणी नहीं कर सकते, तो सानू भाषा नहीं आती, असी समझ ना जानते। दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल, तो सानू गुरु साहब ने प्रैक्टिकल वैल्यूज ही दी हैं, बट सानू शायद पढ़ना नहीं आ रहा पूरी तरह, और सानू पूरी तरह ना समझाना नहीं आ रहा। सोशल जिहड़ा मॉडल सानू गुरु साहब ने दिता, ਉਹਦੇ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि बैलेंस नहीं है, सानू एक बैलेंस चाहिए। तो उन्होंने गृहस्थ और उदासी, माया विच उदासी का दे दिता सानू, प्रवृत्त निवृत्त दे विच दे दिता कि वर्ल्डली और टैंपोरल लाइफ, भक्ति शक्ति मीरी और पीरी, ਇਹਦੇ फलसफे दे विच उन्होंने साडा पूरा जिहड़ा समाज है, अगर असी देखिए तो उन्होंने सानू इंडिविजुअल डेवलपमेंट के नाल नाल सोशल डेवलपमेंट भी दी हुई है। इंडिविजुअल बाणियां भी हैं साड़ियां नितनेम दी, नाल ही साड़ी संगत तौर पर आसां दी वार दी बाणी भी सानू दिता होया कि असी इंडिविजुअल अगर जाती तौर पर डेवलप कर रहे हैं तो सानू समाज की समझ और समाज नूं देना भी आना चाहिए। थोड़ा जिहा हुण मैं गुरु ग्रंथ साहब और इकनॉमिक्स का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो टच करांगी। असी इकनॉमिक्स नूं जोड़िया होया पैसे दे नाल, मटीरियलिज्म, पदार्थवाद। इकनॉमिक्स ग्रीक वर्ड चो आया होया, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इकोनोमिया, लेकिन जिहदा अर्थ बिल्कुल भी पैसे का जिक्र ही नहीं कर रहा,
एक ਉਹਦਾ अर्थ है केयर एंड मैनेजमेंट। दूसरा ਉਹਦਾ मीनिंग आंदा है इट इज़ द वे ऑफ इनहैबिटिंग द वर्ल्ड एज अवर होम। इस पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ मतलब ऑनेस्ट लिविंग ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ऑनेस्ट है, लेकिन ਨਾਲ ही गुरु साहब ने जोड़ता काल करे कि छतों दे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल बिल्कुल नाल ही वो लैके चले ने। सानू गुरु साहब ने इकोनॉमी जोड़ी सी मोरालिटी दे नाल, असी इकोनॉमी जोड़ दी है पदार्थवाद पैसे दे नाल। आज अगर असी देखांगे तो कॉरपोरेट कैपिटलिज्म है, स्टेट मोनोपोली है। कॉरपोरेट जोड़ा वर्ल्ड है, जोड़ा कार्ल मार्क्स ने कहा कैपिटलिज्म, वो वाकई बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। SEZ और जो मॉडल सारे आ रहे हैं वो पिछे उन्होंने कोई मानसिकता डेवलप करन दी नहीं होंगी। जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दे विच 2009-2010 दे विच इकोनॉमिस्ट इकट्ठे होकर उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 80% ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਦੀ ਵੈਲਥ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80% ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 20% ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 9% ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर तुसी नैट ते भी देखोगे तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का पेपर पिया होया है, उन्होंने लिखा है कि प्रेजेंटली वी फेस द चैलेंज वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म वर्सेस वर्ल्ड ऑफ सिटीजनशिप। इकोनॉमी इज फॉर ह्यूमैनिटी बट वी हैव डन इकोनॉमी वर्सेस ह्यूमैनिटी। व्हाट शुड वी सेव, फाइनेंशियल सिस्टम और ह्यूमैनिटी। रीसेंट अगर असी एक एग्जाम्पल देखिए ना, जो साड़ी इकोनॉमी का हाल है, एक 2 साल की बच्ची और एम्स हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗੜੀ। ਜੋ ਉਸ NGO ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਰੇਪਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉਹਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। लेकिन यह सिर्फ सोशल इशू नहीं है, यह इकनॉमिक इशू है, क्योंकि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। जो ट्रैक डाउन किया इनू तो पता चलिया कि उसकी मदर ने उस बच्ची को वेचा होया, क्योंकि वो खर्चा नहीं पूरा कर सकती। बच्ची नू नहीं, उन्हें अपने 4-5 साल के बेटे को भी वेचा होया, और बेटे ही नहीं, उसकी मदर खुद भी सैकेंड मैरिज के तौर पर किसी के कोल विकी हुई है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी। तो हुण इकोनॉमी असी किस तरह की इकोनॉमी की गल कर रहे हैं। चलो इस इशू के उत्ते तो सानू लगेगा ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बड़ा गलत हो रहा है और स्लेव बनाया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स पिंडां दे विच अज भी है पंजाब के इंटीरियर्स, UP, बिहार, राजस्थान के इंटीरियर्स दे विच, मध्य प्रदेश, गरीबी इन्नी कि वो अपने बच्चे वेच रहे हैं। चाइल्डलैस कपल्स नू, NRIs नू दे देंगे। उत्थे उन्हां दा की होंदा, नो वन नोज, ना ये लोग उत्थों जा सकते ना पता कर सकते, और मोस्टली वो सैक्स वर्करस के तौर के उत्ते बॉयज़ होन चाहे गर्ल्स होन। गोवा के बहुत सारे केसिस सामने आए सन जिथे NRIs ने बच्चों को सैक्स वास्ते यूज़ किया, चाहे वो बॉयज़ सन चाहे गर्ल्स सन। लेकिन एक साड़ी कॉरपोरेट इकोनॉमी जोड़ा एग्जाम्पल साढ़े बिल्कुल सामने 2 साल का आ रहा है ना, जी मंडी लगती है लोगों को वेचन और खरीदन की, और वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। असी इन्ना इंजॉय करने IPL के मैचेस के दौरान जो प्लेयर्स विक रहे होंगे, पूरा दिन लाइव आता है, और कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिन्हें इस चीज़ को अपोज किया होए। पुष्कर दे विच असीं देखते हैं कि ऊंटां दी और बैलों की इन्हां दे मेले लगते हैं। इत्थे इंसान विक रहे हैं एंड वी इंजॉय किन्ने करोड़ का विक गया, और ऑफिस तो भी सानू फोन आता है कि युवराज सिंह विक गया कि नहीं विक गया। फिर असीं उहदे पुछने हरभजन सिंह जिहड़ा हैगा प्लेयर, वो पाकिस्तान के प्लेयर नालों ज़्यादा महंगा होया कि नहीं होया। नो वन इज अपोज। ए कॉरपोरेट असीं कहने इनोवेशन है, असी इनोवेशन के युग के चल रहे हैं। इनोवेशन नहीं है, ह्यूमैनिटी को असी बिल्कुल दबा दिता है, खत्म कर दिता है। जो गुरु ग्रंथ साहब के सानू पूरे प्रिंसीपल्स मिलते हैं,
गुरु साहब ने अगर वड्डी संगत इस्टैबलिश की जो छोटी संगत नाल ही इस्टैबलिश की। गुरु हर राय साहब ने दवाखाने खोले बिल्कुल फ्री। गुरु अर्जन पातशाह ने ਲੈਪਰੇਸੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੀ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। एक मुजफ्फर अली फिल्म मेकर ने, उन्होंने वाइफ मीरा अली, उन्होंने लखनऊ के नवाब भी ने, उन्होंने जी लखनवी आर्ट है जिवें डाइंग आर्ट सीगा वो उन्होंने रिवाइव किया डिजाइनर्स दे नाल मिल के। अच्छा पैसा वो डिजाइनर्स नूं देंदे, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। वो किया। उस तो बाद हुण बहुत वड्डे जिहड़े ग्रुप्स ने, कोका कोला कंपनी, पैप्सी, एज पार्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सानू गुरु ग्रंथ साहब विच मिलता है कि गुरु साहब ने सानू कहा कि अगर तुसी किरत करोगे तो मैंडेटरी साढ़े वास्ते 10वां ऑब्लीगेटरी बनाता कि वी मस्ट गिव अपनी इनकम का 10वां हिस्सा फॉर ह्यूमैनिटी। वो कोई कम्यूनिटी की गल नहीं की, ह्यूमैनिटी की गल। लेकिन साढ़े चो एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिन्हें कभी ऐ सब एग्जाम्पल्स देखे हो। उन्होंने जो अवार्ड मिलता विच इज़ वेरी नाइस, उन्होंने मिलना चाहिए। साढ़े चो एक भी इंसान ने किया है कि 500 साल पहले है तो मेरे गुरु साहब दे के गए ने कॉन्सैप्ट, है कोई नवा काम नहीं कर रहे। सानू क्यों नहीं पता लगता, जूं कस्तूरी मृग ना जाने। सानू अपने ग्रंथ के बारे, पानी के बारे, गुरुओं के बारे वी डोंट नो एनीथिंग। एक कलाम की बुक नवी आई है जिहड़ी अज की ग्लोबलाइजेशन के बारे दस रही है, वो तुसीं सब खरीदना। टारगेट 3 बिलियन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 अरब पॉपुलेशन पार कर गई साडी कंट्री, लेकिन 3 अरब तो ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिहड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हां दा पोटेंशियल ही टैप नहीं होया और जिन्हां कोलों रोज़मर्रा दी चीज़ां भी नहीं मिल रही, खाण दी चीज़ां नहीं मिल रही। रिसेंटली बैंगलोर, कोई अफ्रीका और सुडान की गल नहीं है, बैंगलोर दे विच ह्यूमन टॉयलेट खांदे हुए भिखारियां नूं देखिया गया। ਉਹਦੇ उत्ते हुण एक NGO काम कर रही है। लेकिन असी डू वी थिंक असी ग्लोबलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ लोकलाइजेशन कर दिता। असी जो पंजाब के इंटीरियर से जाने, राजस्थान, यूपी, सब पिंडां विच असी जाके देखिए किहड़ी ग्लोबलाइजेशन है। उत्थे दवाइयां उन्होंने नहीं मिलती, हैल्थ सैनीटेशन उत्थे नहीं, एजुकेशन उत्थे नहीं, खाण दा प्रॉपर खाना भी उन्होंने कोल नहीं है। तो असी किस तरह की ग्लोबलाइजेशन की गल कर रहे हैं। तो गुरु साहब ने सानू पूरा एक कॉन्सैप्ट दिता है कि नाल सब नूं लैके चलना है, पूरी ह्यूमैनिटी वास्ते। अज भी जो इंस्टीट्यूशन ने कायम ने, लंगर भी कायम है, लेकिन वो स्पिरिट सानू ब्रॉडर चाहिए। वो स्पिरिट जो गुरु साहब की स्पिरिट सी, या जो उन्होंने लिबरल और फ्लैक्सीबल माइंड सैट सी, वो विजनरी सन। उन्होंने एक सीमित दायरे की गल नहीं की कि 100 साल होएगा, 200 साल नहीं। उन्होंने अज की टाइम की गल की है। सानू वो विजन नूं पकड़ना है पहले। तो लंगर ठीक है गुरुद्वारे में चलता, बहुत अच्छी गल है, लेकिन सानू उन्होंने उस तो बाहर कट के लैके आना चाहिए। अगर असी हुण गुरु साहब का देखिए ना, असी ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट की गल कर रहे हैं, GDP इंक्रीज हो जाए साड़ी, लेकिन ग्रॉस डोमैसटिक हैप्पीनेस जी है साड़ी माइनस ही होती जा रही है। हर घर दे विच खुशी होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 स्क्वायर मील्स तो सानू मिलनियां चाहिए। और साड़ी जी नीड्स हैं, साड़ा एक गुरु ग्रंथ साहब भी ऐसा ग्रंथ है जिथे साड़ी नीड्स नूं भी उन्होंने रिकगनाइज किया। भूखे वगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। उन्होंने नीड्स नूं नहीं नकारिया कि खाओ पियो नहीं। जिस तरह सर ने कहा सी, हसंदियां पनंदियां, खिलंदियां पनंदियां खवंदियां विचे होवे मुकत। अल्टीमेट एम साड़ा लिबरेशन का है, लेकिन जी जर्नी है वो जर्नी भी उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल दसी है सानू। हसंदियां खिलंदियां पवंदियां खलंदे, पूरा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी जो साड़ा अज फोकस है। गुरु साहब ने सानू नहीं कहा कि तुसी कुछ छड़ दो। दे सेड कि तुसी पूरा जियो, अच्छा जियो, एक गृहस्थ आश्रम प्रॉपर दो, लेकिन नॉर्मल सानू नॉर्म्स और वैल्यूज के नाल जीन नू गुरु साहब ने सानू कहा। सम अप अगर मैं करा, जो चीज़ां मैनू लगियां 3 लाइन्स दे विच, वेल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर एंड बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज़ ऑलवेज डिजास्टरस। साढ़े सामने है, और ये 3 प्रिंसिपल्स के उत्ते गुरु साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब की पूरी वैल्यूज रखियां। वी नीड टू रीड दैम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम, रिफ्लैक्ट करांगे। उस तो बाद सानू रोज़मर्रा असी अपनी लाइफ दे विच उन्हां नू अप्लाई करांगे। दैन वी कैन से कि सानू रेलेवेंस वास्ते सैमीनार्स करने की जरूरत नहीं पेगी। वील अंडरस्टैंड एंड वील बी एबल कि असी दुनिया नू भी दस सकीए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहब की है,
कितना रेलेवेंट है और ਉਹਦੀ फिलॉसफी कितनी वास्ट है। थैंक यू।